gesture, it's a very sweet gesture from her. That means we are all very happy. उससे पता चलता है ना कि सब कितना खुश हैं, right? सरप्राइज था नहीं था ये बताइए? Superb surprise था. I didn't know that he's gonna do that. इसी मूवी बनने के बाद मूवी हम सबको बहुत पसंद आई थी और कुछ कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म एक हद तक बिजनेस करेगी, लेकिन थोड़ा बिजनेसमैन के हिसाब से कन्फ्यूजन भी रहती है हमेशा, थोड़ा सा आप शेकन अप रहते हैं कि पब्लिक को किस तरीके से किस लेवल तक पसंद आएगी। लेकिन ये जो इंसान मेरे साथ खड़े हैं ये मुझे फुल कॉन्फिडेंस देते रहे। मैंने कहा वो तो मुझे हर डायरेक्टर देता है, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे? बट आई रियली रिस्पेक्ट दैट थिंकिंग। ये मतलब ट्रूली कॉन्फिडेंट, एक होता है ना घमंड से कॉन्फिडेंट होता है, वो नहीं, एक जो कि ही न्यू कि इन्होंने कैसे मैंने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है कि ये इट कैन नॉट गो रॉन्ग। See, you can't set a target like that. See, honestly, what has happened today is that if you see, 100 crore is nothing today. It's a matter of perspective, right? There are films which have done 400 crores also. It's always with respect to what is the size of your film. That success is defined. You know, if you make a film in 5 crores, right? Even if it does 25 crores, it's a bigger success than a 100 crore film doing 150 crores. So that is the whole point. So numbers in that sense do not matter. What matters is that there is a great return on the investment, which in this case is almost like more than 100%. So which is a great thing. So whether now it does 90 or it does 110 is immaterial. See, you can't make a film thinking of a sequel in mind. You can never design a film thinking that I'm going to do a sequel to it. What always happens is that you do a film and then later you explore the possibility. So now everyone after watching the film is saying that there could be a sequel to it. Yes, there can be a sequel to it. There can be a true sequel, there can be a sequel to Spirit. But it's not something that you decide beforehand कि हम फिल्म बना ही इस पर्सपेक्टिव से रहेंगे, इसकी तो ये सीक्वल बनेगी। वैसा कभी होता नहीं है। आप एक कहानी अपने आप में लिखते हैं। बट जितना और जब चलेगी तब बनेगी ना सीक्वल, तो ये पता नहीं होता किसी में चलेगी नहीं चलेगी। बट जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सीक्वल पहले सोच लेते हो और तुम सीक्वल पहले सोच लेते हो फिर। हाँ, मुझे भी तो आपने कहानी See, when I sold it to him, I sold it with a thing कि इसकी सीक्वल भी बन सकती है। But that's more of a selling point. But enough, as a film, it needs to be complete on its own. And then when a film is received a certain way, अब वो लोगों को बहुत पसंद आती है। मेरा अपना मानना ये है कि सीक्वल तब बनाओ जब ना फिल्म देखने के बाद लोगों की तरफ से ये बात आए कि इसकी सीक्वल बनेगी क्या। अगर ये सवाल ही लोग नहीं पूछ रहे कि क्या इसकी सीक्वल बनेगी, यानी कि इसकी सीक्वल का कोई तुक नहीं है। Exactly, that is what I'm asking you. Like after seeing the success of this movie. We were, yeah. See, I'll not lie to you. I'll tell you the honest truth. Sequels are like safety net. Sequels are like your trump card. Sequels are, you do your cinema, and then there is a place of sequels because you know that this is a product that people have liked, and you will always get time for safety. In life, not everything goes right. You make films, some go right, some go wrong. So sequels give you that cushion to go back to your comfort space and become viable again. At the same time, sometimes when you're free, you feel that okay, I have 8 months, not him. Okay, and you feel कि एक पेंट हाउस खरीदना है, तो चलो सीक्वल बना लेते हैं. So अलग-अलग reasons की वजह से लोग सीक्वल बनाते हैं. My whole logic is I don't want to do a sequel till I'm very sure of the fact that I'll be able to surpass the first one. If you can't surpass the first one, then let it be. लोग कम से कम एक याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे. आप दूसरी बनाने जाओ, उसमें फ्रेंचाइजी भी खत्म हो जाए और आप पहली वाली का भी नाम खराब हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं. और कोई सेट पैटर्न तो है ही नहीं ना कि 1.5 साल में आनी है, 2 साल में आनी है. वो जब आ जाए जो है, अगर ब्रांड उतनी बड़ी हो जाती है, जब तक राइट स्टोरी आती नहीं तो क्यों. गोलमाल was after 7 years. 7 years. तो पंचनामा 1, पंचनामा 2 के बीच में there was a gap of 4 years. Right? And I really think that between any sequel there should be gap of at least 3 years. Otherwise मीठे की तरह होता है. आप गुलाब जामुन 1 खाओगे अच्छा लगेगा, 1.5 खाओगे अच्छा लगेगा, 2 दूसरे तक आते आते कई बार लगता है ना कि ज़्यादा ही मीठा हो गया, जो पहला खाने में स्वाद आया था वो भी चला जाता है. तो वो नहीं होना चाहिए सीक्वल्स का.
way to you consider very small, but tremendous over the impact, right? सी मेंटालिटी हर जगह व्यूअर्स की कनेक्ट करती है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ वहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में नहीं, दुबई में भी बहुत अच्छी जा रही है फिल्म, क्योंकि इंडियन ऑडियंस जो कनेक्ट कर रही है हर जगह, मतलब उनके दिल तो सेम ही होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर गेटिंग कनेक्ट. Also, entertainment is one thing. See, like we have grown up on English shows, right? The shows which are hitting the West are hit here also. It's about, it is a thing with humor. But today, with the world so exposed to the universal content, if your film is universal, if your content is universally entertaining, then people will get entertained anywhere. Especially Pakistan में तो क्या है? This is the language they understand. This is the language which is common for them. And they will in fact like they depend lots of our films. या इट इज देयर इंडस्ट्री. वैसे भी हमारी फिल्म का नॉर्थ फ्लेवर तो है ही है, विच इज़ वेरी The flavor is such that it is easier for them to relate to. appreciate. यार मैंने प्यार को लिखा ही नहीं, मैं तो ऐसे क्या करता हूँ कि जैसे आप और आप मेरे दोस्त हो और आपको प्यार होता है, तो मुझे ना बाहर खड़े होकर मजाक उड़ाने का शौक है. क्योंकि क्या होता है, आदमी कूद के लेके चिल्के पे गिरता है तो टूटती है, तो किसी को हंसी नहीं आती, लेकिन आप गिरोगे तो मुझे हंसी आती है. तो मेरा अधिकतर सिनेमा इज अबाउट ऑब्जर्वेशन. आई सी समथिंग, ओके, आई सी स्टोरीज ऑफ पीपल अराउंड मी एंड आई एग्जैजरेट देम. मैं ये भी नहीं कहता हूँ ये रियल है. What happens is cinema is what? Exaggeration. See, either it's realistic or it's an exaggeration of reality. So my cinema in a way is an exaggeration of a certain situation that I see from a certain perspective. For fun. And something right title of it. Yeah, very content. वो भी लोगों ने accepted and maybe it's kind of an opening for other people also. Giving an example, you know, अरे यार मुझे पैसा आता है. See, I'll tell you what happens is when something goes right, then everything about it goes right. When a film doesn't work, it would have been the same. पहले तो सेम प्लेस ही होती, सक्सेस पार्टी नहीं होती. लेकिन सवाल ये रहा होता कि ये ना टाइटल रॉन्ग था, इस वजह से लोग बोल नहीं पाए, समझा नहीं पाए, लोग टिकट नहीं मांग पाए, जबान पे नहीं चढ़ा. जब कुछ चलता है ना तो उसके बारे में फिर सब कुछ चलता है. द ट्रूथ इज सोनू की शूटिंग क्यों, मुझे टाइटल नहीं आ रहा था. मैंने बहुत सोचा फिल्म किस बारे में है, फिर मैंने सोचा फिल्म किसके बारे में, सोनू के टीटू के और स्वीटी के. सोनू टीटू स्वीटी ट्रांसलेटेड टू हिंदी, सोनू के टीटू की स्वीटी. द सेम थिंग हैपेंड विद पंचनामा आल्सो. इन प्यार का पंचनामा, मैंने केप्ट द टाइटल प्यार का पंचनामा. Viacom did a research on how good the title is, and from everywhere the response was the worst title ever. Okay, and they had an option of a few titles to me. So these are the titles, you know, which should be the title. And my own thing was, nahi yaar, Pyar Ka Panchnama is the title. But the thing was that no one would understand what Panchnama is. No one would understand what Panchnama is. My whole logic was, if people will like the film, they will themselves, you know, try to figure out what Panchnama is. तो अगेन, अब उसके बाद पंचनामा एक फ्रेज बन गया. रेडियो शो आ रहा है प्यार का पंचनामा नाम से, लोग हेडलाइंस बना लाते हैं पंचनामा की. तो वो क्या है, जब चीज़ चलती है ना तो उसके बारे में फिर हर चीज़ सही लगती है. एक लाइन में सुनाते हैं बस, उसके बाद बस उसमें भी कॉन्फिडेंस. ठीक है, we have what is the basis of this relationship? The basis of this relationship is that he does not enter my work, I do not enter his, and that's the whole logic. Because cinema is something that you can see. You may read a script 10 times, you can try to figure out between 100 scripts. What has to go right goes right, what has to go wrong goes wrong. So it's about a belief system. He believes that it is my job, so he lets me do it. His thing is, हाँ बहुत अच्छा है, आप करो, right? I let him do his job. तो वो तो यहाँ इक्वेशन ही नहीं है कि स्क्रिप्ट आएगी और फिर डिस्कशन होगा और उसमें क्या हो, है ही नहीं. हो नहीं सकता ना. सी, it's not an anti-love film. See, for प्यार का पंचनामा to happen, what is the basis of प्यार का पंचनामा? प्यार का पंचनामा is प्यार का पंचनामा, right? This film is not about that. इसमें हम प्यार के बारे में कुछ अगेंस्ट तो बोल ही नहीं रहे ना. इट्स अ फाइट बिटवीन दोस्त एंड लड़की, कि दोस्त या लड़की. तो सब्जेक्ट मैटर ही ऐसा नहीं है जो उस चीज़ को सपोर्ट करता है. और अब एक और बात भी सोच के देखो,
देखो, पंचनामा 3 नाम रखते थे, लोग बोलते मैं पंचनामा ही बना सकता हूँ। आज इसका अलग नाम है फिर भी चल गई ना। ऐसा तो नहीं है कि लोग सिर्फ पंचनामा ही देखना चाहते हैं। So there is a film that we have already announced, which is directed by Akeev. Akeev has also edited all our films. So वो T-Series के साथ ही है. Ajay Devgan is the lead actor. Ajay Devgan, Rakul Preet और Tabu. It was already slated for release in October. देखिए, जन्मों जन्मांतर का रिश्ता तो बाप बेटे का नहीं होता इस दुनिया में, करेक्ट। मुद्दा क्या है कि हम लोग ना, आर एसोसिएशन इज नॉट एन एसोसिएशन ऑफ पेपर वर्क, आर एसोसिएशन इज नॉट एन एसोसिएशन ऑफ अग्रीमेंट्स। द होल आइडिया इज आई लाइक वर्किंग विद हिम, ही लाइक्स वर्किंग विद मी। हमारे बीच में कोई मैटर ही नहीं है। वी हैव सेड इट अर्लियर ऑल्सो, टिल नाउ मी एंड हिम हैवंट हैड अ मीटिंग व्हिच इज मोर देन 15 minutes long, and normally also all the work that we discuss is probably over lunches. So it's just the ease that we have between us in terms of working, which has created this association. And till he's liking working with me and I'm liking working with him, there is no reason to not work together. Is it time for to extend prayers for Irfan, and if you would like to share anything about him? Yeah, you're just celebrating success. See, it's a sensitive thing, but he's definitely, our wishes are with him. He will definitely get recovered soon. He's going for his treatments out of India, and जल्द से जल्द हम यही दुआ करते हैं कि वो जल्दी से वापस आएँ और अपना काम शुरू करें जिसके साथ उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी हाल ही में हमारी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमारी फिल्म आ रही है ब्लैकमेल, तो उन्होंने हमें यही बात बोली कि इसको आप प्रॉपरली रिलीज़ कीजिए। अनफॉर्चुनेटली अभी वो हमारे साथ नहीं उसमें शामिल हो सकते, बिकॉज ऑब्वियसली हिज हेल्थ कम फर्स्ट। सो बट सून वो, हम उम्मीद करते हैं वो सब जल्दी वापस आ जाएंगे अपना ट्रीटमेंट कराने। और वो हम 6 अप्रैल को रिलीज़ कर रहे हैं फिल्म एज पर शेड्यूल। थैंक यू। हेलो फिर कौन है यार? Feeling is superb because the best feeling is every day the numbers are there and still people are giving good response and everybody is watching it twice, thrice, I think 4 times also. So सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आज हम कल का भी अगर देखा तो हमने देखा था 2.5-3 करोड़ तो जाता ही है और बहुत प्यार दिया है लोगों ने और बस ऐसे ही हमको प्यार देते रहे हर पिक्चर में। मेरे को सबसे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि यार तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत क्यूट थे पिक्चर में और मैं चाहता हूँ कि सारे लड़के ऐसे ही हो, तो मैं भी दुआ करता हूँ कि सारे लड़के ऐसे हो। ये क्या है कि देर आर थिंग्स हैपनिंग, देर आर प्रोजेक्ट्स विच आर हैपनिंग विच विल बी, आपको जल्दी कुछ ना कुछ सुनने मिल जाएगा। बट उस टाइम पे मुझे पता था कि आई शुड लिटिल वेट बिकॉज आई नो लव सर इज़ मोर लाइक अ बिग ब्रदर टू मी और इज माई मेंटर। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक एडवाइस और वो सारी चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से आज भी मैं उसी चीज़ों पर हूँ। सो दैट इज़ द थिंग एंड आई यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड वेट फॉर द सरप्राइजेस। लव सर और किसी को everybody is happy, even for that matter Omkar had a word with me long back और वो बहुत खुश है। he was just waiting for the movie कि अपनी टीम, और जब टीम अलग अलग प्रोजेक्ट करती है वो ज़्यादा बेटर होता है और everybody is happy for each other and I am even happy that whatever he is doing is doing super। हेलो सर, कैसे हो? गुड इवनिंग टू यू। When you see a film, when you shoot, you know
what you have done. When you see a film, you get to see others also. So I think वो जो family, Karthik, Nusrat, we all were together और वो scenes देखने में मिला, and it was very good. Even everybody has performed so good that I was overwhelmed. At the same time, Alok sir जिन्होंने सबने अपने अपने कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो देखने का मजा ही कुछ अलग है. सर वो ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ आपको एक इंसान दे सकता है, लव सर. ये तो मेरे को नहीं पता, ये मेरे को तो कोई आइडिया नहीं, बस मुझे ये पता है I'm always there, जब भी बोलेगा तो बुला लो. सबसे पहली बात तो कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है, हमें कंटेंट पता था कि ये अलग है, अच्छा है, एंड इट्स ऑल्सो फॉर द फैमिली ना. सो द होल द मासेस दे गोना रीच टू मासेस. और प्लस गाने पे हमें बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस था क्योंकि हनी जी हैं और उनके गाने हर कोई पसंद करता है, हर गाड़ी में बजते हैं. प्लस अगर आप कोई भी टोटे टोटे या सुबह सुबह या कौन नच रही, आप कहीं में भी लगाओ सब नच रहे हैं. तो दैट इज हैपनिंग. थैंक यू सर, थैंक यू, लवली. Amazing response for History 4 too, and thank you so much everyone for loving it because it's my debut and I'm getting so much love from everyone. Thank you so much. And yes, we are here for Sonu Ke Jeetu Ki Sweetie and everyone is appreciating it, and here I am also to actually celebrate the success of Sonu Ke Jeetu Ki Sweetie, and definitely I'm going tomorrow and watch the movie and I will share my views again. Thank you. Thank you. We are getting an amazing response. Even the critics, they are also liking it, and best part is they are liking my performance, and I was very nervous about that because it's my debut, but they all are really appreciating it and I'm really happy. Even the collections are amazing. Even I'm getting personally so many messages from people and everyone is loving it, and I think I'm blessed to get so much love. Thank you. Next movie Nastik is coming with Arjun Rampal ji. That movie it might get by end of this year. We are still shooting for that. And besides that, I keep on doing my Punjabi movies. I am basically from Punjab and I'm shooting for Ghulam right now. I'm starting another Bollywood project by end of April, which I will announce pretty soon. It's Nastik. Nastik. Very active before, but I think I got active more right now, and yes, I am acting on social network, and my Instagram ID is Ihana Dhilan. I'm on Snapchat again, Ihana Dhilan. I'm on Twitter, that's Ihana Profile. Mostly people get confused on Twitter because it's not Ihana Dhilan, it's Ihana Profile, and I'm getting amazing messages from people on my Instagram messages or even on Twitter. People are reposting my posts, which is amazing, and I think I'm very happy to get all the response from people. Thank you. Thank you.
think that being part of the fraternity, I hope that we have lots and lots of box office hits. But not just that, I think the most important thing is that this is a, upcoming stars film, with Karthik and Nusrat. So I think that it's very important for newcomers to have this kind of success, because that gives us, I'm also a newcomer, it gives us a lot of strength. Yes, I've seen the film and I really enjoyed it. इस फिल्म में बहुत सारे पंच लाइन्स हैं और ये बिल्कुल यूथ सेंट्रिक फिल्म है और इसीलिए आज इतनी सक्सेस पार्टी हो रही है उसके लिए, बिकॉज आई थिंक दैट जो यूथ को भा जाए, मतलब समझो कि वो हिट है। Karthik Aaryan. Honestly, I've come here to celebrate Karthik Aaryan's success. I'm a big fan of his. I love his work. Pyar Ki Panchnama, Kanchi, even Akashvani. I think Karthik Aaryan is A1. Thank you. All the best. हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है और इतने कम टाइम में, दैट आई लव इट। सॉरी, बेस्ट एक्सपीरियंस, राइट? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक आई गॉट फॉर माई डांस। यार बहुत टाइम बाद somebody's come and said कि ऐसे मूव्स आपने कहाँ से सीखे, और मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ, बट मैंने किया है। सो आई थिंक एक नया आके फीडबैक मिला है मुझे अबाउट द मूव्स आई हैव डन, आई विल टेक दैट एज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। इंटीग्रल पार्ट होता है एंड आई फील कि हमारी पिक्चर का म्यूज़िक इतना अच्छा था कि उससे हमें और ज़्यादा रिस्पॉन्स, फुटफॉल, इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी, बज़ क्रिएट हुई। तो आई विल डेफिनेटली से द सॉन्ग्स हैड अ वेरी बिग हैंड टू प्ले इन इट, बट इवेंचुअली कहानी अच्छी थी यार। मतलब कहानी के बिना आई गेस वो हम गाने जो हाई पॉइंट अचीव भी होता ना वो फिर ड्रॉप हो जाता, बट अब ये 3rd 4th वीक मतलब चलती जा रही है एंड द फिल्म इज़ नॉट ड्रॉपिंग इन बिजनेस, विच ओनली गोज टू से दैट द प्रोडक्ट वॉज रियली दैट गुड। Expected or not, I want it for sure. So I'm waiting. I have a creative which I already thought of कि जब 100 क्रॉस कर लेगी तब मैं वो पोस्ट करूँगी। So I am very ambitious. Of course बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए, बट ये मैं थोड़ी बनाऊँगी। अब जो सर है वो ही बताएंगे कि क्या हो रहा है, बट अगर बनी तो I know. I heard that it's become a super duper hit in Pakistan as well, and it's making a lot of money overseas as well. So I'm really glad. So I'm really glad that we have that sort of reach now globally. Well, did he not come in already? I thought I was late. Karthik's not here. I'm not late. Yes, I'm breaking one more stereotype as a girl. अब नेक्स्ट कार्तिक पे खत्म, आगे विद यार आई वुड लव टू डू फिल्म्स विद एवरीबडी, कार्तिक, सनी, लव सर, एवरीबडी। तो द मोर द मेरियर फॉर मी, आई लव देम ऑल। हाँ, नेगेटिव नहीं सर, मैंने एक टर्म कॉइन किया है और अब मेरा टर्म चलेगा क्योंकि पिक्चर हिट हो गई। इट्स कॉल्ड एंटी हीरो। सो आई वुड बी द एंटी हीरो एनी डे, एटलीस्ट इन अ लव रंजन फिल्म, बिकॉज बाकी तो लड़के होते हैं तो क्या करूँ। आने वाले समय में यार मैं जो भी करूँगी बहुत सोच समझ के करूँगी, क्योंकि इस टीम के साथ तो मज़े बहुत आते हैं, तो हम ये प्रोडक्ट करते रहते हैं। बट अगर कुछ नया इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो शायद मैं थोड़ा रुक के चूज़ करूँ कि मैं क्या
बेहद पसंद आई। दोनों दोस्तों की कॉमेडी कमाल थी एंड लव रंजन साहब ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। बस आधी बनी हुई है, अभी आधी कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ, तो अगली बात करेंगे उस पर डिस्कस। छोटे छोटे पैग मार, जो ऐसी आवाज नहीं है हमारी। पैग मार बेबी छोटे छोटे पैग मार। थैंक यू सो मच सर, लव यू, आप लगे रहो। थैंक यू, थैंक यू। उस्ताद जी के चरणों में हूँ, उनकी वजह से मैंने मुझे गाने मिले हैं और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी। So happy you guys are happy, you know, I'm glad you're liking my songs and God's been so kind to me. Thank you. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट है। जितने रिस्पॉन्स आए हैं, जितने मैसेजेस आए हैं, जितने ट्वीट्स आए हैं, डीएम्स आए हैं, बहुत खुशी है। आई मीन रिएक्शन इतना अच्छा हुआ है फिल्म का, इतना प्रशंसा है कैरेक्टर्स की सबकी एंड आई एम रियली हैप्पी। मतलब मैं शुरू में थोड़ा सा बहुत वो था कि हेजिडेंट था कि कहीं थिन लाइन थी, कहीं नेगेटिव ना लग जाए कैरेक्टर, ग्रे शेड था, बहुत मैनिपुलेटिव चीज़ें भी कर रहा था सोनू, बट इट ऑल वर्कड आउट यार एंड आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया। अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक लव रंजन सर के पापा ने मुझे दिया था। उन्होंने लास्ट सीन जो फिल्म में है जिसमें मेरा एक आंसू निकलता है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो एक आंसू तुम्हारा निकला है ना, वो मोती की तरह दिलों को छुएगा सबके, तो उस मोती को संभाल के रखना। जी जी जी, बहुत ज़रूरी था यार। मतलब आई थिंक बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, क्रिटिकल एक्लेम, थैंकफुली हमेशा रिव्यूअर्स मेरी तरफ उन्होंने हमेशा काम की तारीफ की है, ऑडियंस ने भी किया है, बट बॉक्स ऑफिस नंबर बहुत ज़रूरी है एक एक्टर की लाइफ में, जो इस फिल्म से मेरे को मिला है, सोनू के टीटू की स्वीटी से, एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग अभी वो एक बैंकेबल एक्टर की तरह देखते हैं मुझे। जी जी, आई थिंक मैं एक फिल्म बहुत सारी फिल्में ऐसी, लेकिन अगर एक फिल्म ऐसा कहना चाहूँ तो बर्फी एक फिल्म थी जिसको देख के ऐसा लगा था कि वो कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आता, एंड नो डाउट रणबीर कपूर ने तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हमेशा से एक्टिंग अच्छी की है, बट एक कैरेक्टर अगर ऐसे पूछना चाहे तो वो बर्फी का रोल होगा। जी, रियल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, गिनती के मतलब दोस्त हैं, बहुत सारे नहीं बोलूँगा, जिसमें मैं किसी का टीटू भी हूँ और दूसरे का सोनू भी हूँ, तो एक से मैं सिचुएशन में हेल्प मांगता हूँ, एक से मैं हेल्प देता हूँ एक को, तो वैसा रहा है मेरे साथ, बट इस एक्सटेंट तक मैं कभी गया नहीं हूँ, बट आई एम श्योर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं भी अपने दोस्त को एक ख़राब मैरिज से बचाने की कोशिश करूँगा। अजय सर के साथ सॉरी क्या क्वेश्चन था? अजय देवगन जी के साथ मूवी आ रही है, मतलब आपने साइन की है? जी, कोई भी अनाउंसमेंट जो मेरे होंगे वो जल्दी ही होंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि क्या मेरी अगली फिल्म होने वाली है, बट राइट नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग सक्सेस ऑफ सोनू के टीटू की स्वीटी एंड आई कांट कमेंट ऑन एनीथिंग राइट नाउ। ये मैं पार्टी करूँगा उसके बाद फिर बताता हूँ आपको। ऑफ कोर्स, मतलब मैं ये टीम के साथ बहुत एक लगाव सा हो गया सबके साथ काम करने का, एंड होपफुली इन फ्यूचर भी काम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली साथ में काम करेंगे।
वाले ब्रैकेट में, आई मेड इट, आई अराइव। सर मतलब वो ऑडियंस का और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो जवाब। तो आई थिंक आई एम मतलब मैं खुद उस चीज़ को जज नहीं कर सकता, बट आई एम रियली, हाँ मैं फील ये कर रहा हूँ कि ऑडियंस से, क्रिटिक्स से एंड सभी से, मतलब आप सबसे या इंडस्ट्री से मेरे को जो जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया है, मैसेजेस आए हैं, आई थिंक जिन लोगों के साथ मैं काम करने की इच्छा रखता था शुरू से, उन लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ऐसी होपफुली आगे भी फिल्में करना चाहूँगा। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं खुद से मुँह से बोलूँ कि आई हैव अराइव्ड या ये सारी चीज़ें, बट आई एम रियली हैप्पी विद द सक्सेस। 6 I think they are very natural actors। रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर स्पेशली मतलब बहुत नेचुरल है। वरुण धवन मासी हीरो एकदम ही, बट इस ब्रैकेट में आने के लिए भी मतलब उन्होंने बहुत सारी फिल्में ऐसी दी हैं जो बहुत बड़ी हिट रही हैं। एंड ठीक है, सोनू के टीटू की स्वीटी ये एक सक्सेस है, बट ये मेरे को और ज़्यादा ऐसी सक्सेस इसके बाद भी चाहिए। बट ये एक चीज़ अच्छी है कि जो कंपैरिजन्स हो रहे हैं उसमें अच्छे एक्टर्स के साथ नाम जोड़ा जा रहा है मेरा भी। सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट। जी ऐसे ही हूँ मैं, आपका कार्तिक ऐसे ही है जी। इन्होंने, मैं बताता हूँ, पार्टी पहले रख ली। मैं अपनी एक्चुअली मेरी मम्मी यहाँ पे आ रही थी और उनकी मतलब वो थोड़ी डिले हो गई आने से। हेलो ऐसे ही ठीक है। तो हाँ, मैं इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ अगर मैं लेट हुआ हूँ। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था, मैं अपनी मम्मी को पिक करने गया था सक्सेस पार्टी के लिए, एंड बस उसके लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। पर आप लोग ने शायद खाना खा लिया होगा। यार आई एम रियली हैप्पी कि वर्ल्ड वाइड भी सक्सेस फिल्म को बहुत मिल रही है। मतलब हर कॉर्नर से फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है, चाहे वो इंडिया में हो, बाहर हो। इनफैक्ट कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब शोज़ अलग से लगवाए गए हैं जहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई थी फिल्म, तो वो बहुत एक बड़ी बात है और सक्सेस वाली बात होती है एक फिल्म के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी कि ऐसा वर्ल्ड वाइड एक रिकग्निशन मिल रहा है फिल्म को, और आई एम जस्ट हैप्पी यार। आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस एंड आई वांट टू कंटिन्यू celebrating success। टेबल हटा दे। वीडियो है ना, इसको बीच में रखे ना।
कॉम्प्लीमेंट ये था दैट माई कैरेक्टर दैट आई एक्सप्रेशन क्वीन एंड सारे शेड्स ऑफ कैरेक्टर मैंने इस किरदार में निभाए. सो आई वाज वेरी हैप्पी. व्हाट नेक्स्ट? आई हैव साइंड अ फिल्म. आई कांट टॉक अबाउट इट येट, लेकिन आई होप यू विल हियर फ्रॉम इट सून. अबाउट व्हाट? फॉर द फिल्म तो आप सबने देखी है, आपको पता ही है कैसी है. अच्छा, दूसरी अभी मुझे बोला है कि अभी ना बोलूं, लेकिन वो आ ही जाएगा बाहर. कैरेक्टर जैसे मैंने अभी तक से निभाया उससे बहुत अलग है. अगेन अभी पता चल ही जाएगा आपको. पता चल जाएगा. मैं सब कुछ स्क्रिप्ट बता दूं, स्टोरी बता दूं, क्या है? ये कितने अच्छे हैं फिल्म में, इन्होंने बहुत अच्छे से. अब मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो तारीफ करेगा, वरना बिल्कुल नहीं करता. नहीं ऑफ कोर्स सिर्फ पार्टी करने आता है मेरे साथ. नहीं बट बहुत अच्छी फिल्म है यार, एंड एवरीवन डन सो वेल एंड सो हैप्पी टू सी द फिल्म. मैं इनफैक्ट बताना चाहूंगा, मैं चली जाऊंगी. अरे नहीं, समथिंग अबाउट मी फास्ट में जा रही हूँ. यू आर वेरी गुड इन द फिल्म. थैंक यू, कांग्रेचुलेशन. कर लो. But yeah, so where was I? Sitting there, and I went on a 5 o'clock show, and it was full, and the audience were like really hooting and clapping, which was such a good sight to see because सोनू की टीटो की स्वीटी जैसी फिल्में, हमारी फुकरे, इन जैसी फिल्मों को जो रिस्पॉन्स मिलता है, it's so overwhelming to see the audience response like that, and it's just amazing to see the numbers that these films are doing. So upcoming projects, there's a film that we've completed. It's in post-production right now, which is called Friday, which has Govinda sir and me in it. That comes out mid this year. And currently I'm shooting for Arjun Patiala, which is Dinesh Vijayanji's and TC's film, directed by Rohit Chukraj, and as Diljit Dosanjh, Kriti Sanon and me in it. So I'm very, very excited for that, and that's in process of shooting